आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी, अवाम से मुलाकात, टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनखीद। कनाडा कौंसल जनरल का हैदराबाद कमिश्नरेट का दौरा, शी टीम्स और भरोसा सेंटर का भी किया मुआयना। बजट इजलास में वज़ीर आला केसीआर की तकरीर पर बीजेपी कायदीन की तनखीदें मुस्तरद, रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अराकीन असम्बली और डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। उप्पल पुलिस की कार्रवाई, गांजे की मुंतकिली में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, भारी मकदार में गांजा किया गया जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। माधोपुर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 23.5 किलो गांजे के अलावा एक मोटर कार, 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए। माधोपुर डीसीपी शिल्पावली ने मीडिया को बताया कि रेलवे स्टेशन से कोंडापुर जाने के दौरान गाड़ियों की तनखी की जा रही थी कि मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया जो उत्तर प्रदेश के मुतवत्तियान हैं। इस सिलसिले में डीसीपी ने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। మనకి ఒక మాదాపూర్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ ఎస్ఐ వీరందరూ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్తో వెహికల్ చెకింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మనకి ఒరిస్సా నుంచి మథుర వెళ్తున్నటువంటి మథుర వెళ్తున్నటువంటి ఢిల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ గల కార్ని చెక్ చేస్తే అందులో 23.524 kgs ఆఫ్ గాంజా మనకి దొరకడం జరిగింది. దీనిని వాళ్ళు చాలా తెలివిగా పోలీసులు చెక్ చేసినా కూడా దొరకకుండా ఉండడం కోసము రాగులతో పాటు ప్యాకెట్స్లో ప్యాక్ చేసి కార్ బ్యాక్ సైడ్ రెస్టింగ్ సీట్, తర్వాత సీట్ వాటిలో పెట్టి ప్యాక్ చేయడం జరిగింది. సో సౌత్ జయప్రకాష్ సింగ్, రాధా అనే వీళ్ళ ముగ్గురు కూడాను ఒరిస్సాకి సంబంధించి దార్లిపుట్ విలేజ్, నందాపూర్ మండల్, కోరాపుట్ జిల్లాకు సంబంధించిన డ్రగ్ డీలర్, అట్లనే అరకులో ఉండేటువంటి రమేష్ అనేటువంటి డ్రగ్ డీలర్, వీళ్ళిద్దరి నుంచి కూడా వీళ్ళు ఒక 2500 రూపీస్ పర్ అమౌంట్ అప్రాక్సిమేట్గా పర్ కేజీ తీసుకొని ఇదే పర్ కేజీ మథురాలో 15,000 to 20,000 రూపీస్కి వాళ్ళు సేల్ చేయడం కోసం వెళ్తూ ఉండగా మన మాదాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ డ్రై గాంజా 23 kgs, తర్వాత उपल पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 4.2 किलो गांजा और दीगर अशिया बरामद की। डीसीपी मलकजगिरी पी जानकी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि 2 बाइक्स पर मज़कूरा गांजा मुंतकिल किया जा रहा था कि मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से एक वे मशीन भी जब्त की गई है। 6 o'clockకి నల్ల చెరువు కట్ట దగ్గర మనము ఈ గంజాయి ఉండగా నలుగురిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ నలుగురిలో కూడా ఒకతను A1 బండిరాల అవినాష్ అనే అతను ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాడు. A2 A3 A4లు వాళ్ళిద్దరూ పక్కన ఇంట్లో ఉంటున్నారు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎలాగైనా సరే ఈజీ మనీ సంపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ గంజాయి తెప్పించుకొనేసి అమ్ముతూ ఉన్నారు, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ వేసుకొని. యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించిన చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇక్కడ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక సస్పెక్ట్ని పట్టుకున్నప్పుడు చిన్న ప్యాకెట్ ఉంటే దాని ద్వారా దొరికింది. దాని తర్వాత మనం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కూడా ఈ నలుగురు కూడా మనకు దొరకడం జరిగింది. ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా తెలిసినా వాళ్ళ ఇళ్ళలో కానీ పక్కింట్లో కానీ అట్లా కాలనీస్లో ఏదైనా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గంజాయికి సంబంధించి కానీ ఏదైనా సోషల్ వైసెస్కి సంబంధించి కానీ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా పోలీస్ వాళ్ళకి డయల్ 100 కానీ లేదంటే లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి తెలియపరిస్తే ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ప్రీవియస్ లేవండి, ఫ్రెష్ కొత్తగూడెం
కొత్తగూడెం అని అంటున్నారు. మనం ఇంకా ఫర్దర్ ప్రోబ్ కొత్తగూడెం నుంచి వచ్చిందా, కొత్తగూడెం అవతల మళ్ళీ మనం తీసుకున్న తర్వాత అంటే కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాల్సి ఉంటుంది. సోర్స్ అనేది తెలియాలంటే మనకు కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రోగ్రామ్. చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్ చేసి అమ్ముతున్నారు. ఎవరైతే ఈ మనకు ఆల్కహాల్కి అలవాటు పడి అది దొరకక, లేదంటే ఇంకా కొంతమంది అలవాటు అవుతూ ఉన్నారు కదా ఈ సోషల్ వైస్కి, వాళ్ళకి అమ్ముతూ ఉన్నారు. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है, जिसके दौरान वो आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और हुकूमत की नाकामियों से उन्हें वाकिफ करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वो आवाम से कई इंतखाबी वादे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जुमे के रोज़ 11वें दिन में दाखिल हो गई, जहां आज उन्होंने जनगांव ज़िले के घनपुर में आवाम से मुलाकात करते हुए ये दरियाफ्त किया कि क्या रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गई है, क्या उन्हें डबल बेडरूम मकानात हासिल हुए और क्या दलितों को 3 एकड़ अराजी हासिल हुई और क्या नौजवानों को रोज़गार हासिल हुआ। रेवंत रेड्डी की इस बात का आवाम की जानिब से नहीं में जवाब आने पर रेवंत रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि कांग्रेस इख्तिदार हासिल करते हुए हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా మైనారిటీ కమిషన్ నుంచి ఈ 9 ఏళ్ళ ఎవ్వరికి ఏమి ఇవ్వలే, క్లోజ్ చేశారు. ఎడ్యుకేషన్లో అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వలే. ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే ఏమైందమ్మా అంటే, ఇప్పుడు చదువుకొని ఉంటావు, నువ్వే ఉన్నావు, ఎంఏ పీజీ చదివి, నువ్వేంది ఒకసారి టీచర్ది రాస్తే వస్తుందో రాదో ఫస్ట్ అయితే ప్రయత్నం చేద్దామని ఎప్పటికప్పుడు 9 ఏళ్ళు పోతే 23, 24 ఏళ్ళకు నువ్వు ఎంఏ బీఈడీ చేస్తే 35 ఏళ్ళ వరకు నువ్వు ఎదురు చూస్తే ఇంకా ఏమంటారు ముఖ్యమైన వయసు అంతా పోయినట్టు. ఇక తర్వాత ఆ ఉద్యోగానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు, వేరే పని చేయలేము. సో ఎప్పటి ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन के अलावा वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत के साथ साथ दराज़ी उम्र के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के बाद ये उनकी पहली सालगिरह है, इसलिए इस बार तेलंगाना के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में भी वज़ीर आला की सालगिरह तक़ारीब मुनक़िद की गई। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और निर्मला सीतारामन की जानिब से बजट इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तकरीर पर की जाने वाली तनक़ीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने किशन रेड्डी से दरियाफ़्त किया कि मरकज़ी हुकूमत ने खम्मम और करीमनगर में क्यों मेडिकल कॉलेजेस कायम नहीं किए। उन्होंने करीमनगर और खम्मम में खानगी कॉलेजेस को लेकर यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी न देने की बात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया। ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు నిన్న హైదరాబాద్కు వచ్చి అడ్డగోలుగా మాట్లాడడం జరిగింది. నిర్మలా సీతారామన్ గారి వ్యాఖ్యల్లో నిజాయితీ లేదు, నిజం లేదు, అన్నీ ఉత్తయ డొల్ల మాటలు. కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకి ఇచ్చింది గోరంతా, కానీ బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న ప్రచారం ఏమో కొండంత ఉన్నది. నిర్మలా సీతారామన్ గారు హైదరాబాద్కి వస్తే ఏదైనా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 4 మంచి మాటలు చెప్తారేమో అంటే అన్నీ జూటా మాటలు, గోబల్స్ ప్రచారం చేసి పోయారే తప్ప ఒక్క విషయం మీద కూడా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 69वीं सालगिरह तकरीब का इनेकाद नहायत ही जोश व खरोश के साथ अमल में आया।
बीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र और ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने केक काटा और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई। डी नागेंद्र ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 8 साल में 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और जारिया साल 2,200 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने के अलावा बैंक लिंक खर्चात के लिए 150 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। इस तकरीब में रुकन असम्बली गोपीनाथ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अब की बार మన ప్రియతమ నాయకుడి యొక్క జన్మదిన శుభ సందర్భంగా 69వ జన్మదినాన్ని మనము కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, తెలంగాణ ఆశా జ్యోతి, తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ దిశగా చేసినటువంటి ఒక అపర భగీరథుడుగా ఈ తెలంగాణ తీర్చిదిద్ది దేశంలోనే ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలను కూడా తెలంగాణ మోడల్గా చేయాలన్నటువంటి ఒక సంకల్పంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ बीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता ने कौमी सदर बीआरएस व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर बलकमपेट की एक मंदिर में खुसूसी पूजा का अहतमाम किया और गरीब तबके में साड़ियाँ तकसीम करने के बाद बताया कि के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो सेकुलरिज़म पर यकीन रखते हैं और तेलंगाना में अक़लियतों की तरक्की को मुमकिन बनाने के साथ साथ लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। साबिक़ बीजेपी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी ने पुराने शहर में बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग को दरहम बरहम करने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि बीआरएस और मजलिस की कारकुनों ने बीजेपी कायदीन और कारकुनों पर हमला करते हुए कॉर्नर मीटिंग को ख़त्म करने की कोशिश की, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बीजेपी मीटिंग को दरहम बरहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रियासती वज़रा पार्टी के अरकान मुखन्ना, कॉरपोरेटर्स, हर सतह के लीडर्स के अलावा कारकुनान अपने अपने इलाकों में केक काटते हुए देखे गए। रियासती वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में केक काटा, जबकि KCR की दुख्तर रुकन कौंसल के कविता ने LB स्टेडियम में सालगिरह की तकरीब में हिस्सा लिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तहसीलदार गोलकुंडा के हमरा शादी मुबारक के 46 और कल्याणी लक्ष्मी के 6 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। मुतालिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹرز بھی متعلقہ ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہیں تکمیل کرنے کے سلسلے میں اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم ڈویژن محمد مبین نے جی ایچ ایم سی عہدیداروں اور عملے کے ہمراہ رضوان کالونی میں جاری سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ مذکورہ کاموں کو جلد از جلد تکمیل کیا جائے تاکہ عوام کو سہولت حاصل ہو سکے۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد مبین نے مقامی عوام سے بھی ملاقات کی، جبکہ ان کے ہمراہ مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیگم پیٹ کی جانب سے ماساب ٹینک پر واقع سرکاری پولی ٹیکنک کالج کے طلباء میں ٹریفک قواعد سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے ٹریفک سے ہونے والے حادثات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اے سی پی شنکر راجو نے طلباء کو ٹریفک قواعد کی پابندی کرنے پر زور دیا، جبکہ اس پروگرام میں 50 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ Mistakes made by human being ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అమ్మా డ్రైవింగ్ అండ్ డ్రైవ్ వెరీ గుడ్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ నేచురల్ ఎర్రర్ అంటే నేచురల్ ఎర్రర్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట రాకపోవడం ఇంజన్ లో మంటలు పెద్ద హోల్ పడ్డది ఇట్లా యాక్సిడెంట్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ ఎర్రర్ అన్నమాట నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఎర్రర్ అంటే టైర్ ఫ్లాట్ కావడం తర్వాత టైర్ ఊడిపో 16% మాత్రమే చనిపోతున్నారు కానీ ఇందులో అన్నింటిలో చూడండి వారి వల్ల ఓన్లీ 3 రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ అగర్ 75% ఉమెన్ ఎర్రర్। راجندر نگر کے حیدر شاہ کوٹ میں کمسن لڑکے نے خودکشی کی کوشش کی۔ بتایا گیا ہے کہ والد کی ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ ہو کر اس نے کروسین ڈال کر خود کو آگ لگا لی۔ جھلسی ہوئی حالت میں بچے کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہے۔ صابر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام جاگنے کی راتیں کے حوالے سے لکھی جانے والی کتاب ترتیب کار ڈاکٹر بی بی خاشیہ شاداں میڈیکل کالج حیدرآباد بنتے ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد کی کتاب کی رونمائی الحاج محمد محمود علی وزیر داخلہ ریاست تلنگانہ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر محمد مسعود الدین احمد صدر مدرس سرکاری مدرسہ فوقانیہ دارالشفا حیدرآباد، محمد غوث ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر میکا، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلا شبہ مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مغل پورہ اور مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری ان کے افراد خاندان اسلامی تعلیمات کے حقیقی پیغام کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 69वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। वज़ीर आला की सालगिरह तकारीब के सिलसिले में 15 फरवरी को टोली चौकी के शेखपेट डिवीज़न में शजरकारी की गई, जिसमें मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने पौधे लगाए। इस मौके पर पार्टी कायदीन और दीगर भी मौजूद थे, जबकि दूसरे प्रोग्राम में एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की जानिब से रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट के रूबरू वकला की मौजूदगी में वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने खुद केक काटा और KCR को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि KCR एक तेलंगाना स्टेट के लिए मसीहा है, जिनकी कामयाब स्कीमात के तस्करे मुल्क में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी किए जाते हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की 69वीं यानी 69 बर्थडे को हम सेलिब्रेशन करने के लिए तेलंगाना में बड़े पैमाने पर इसको जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि TRS पार्टी BRS बनने से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मानो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मीवा के इंतखाबात कल मुनक़िद हुए। आज वोटों की गिनती की गई। रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम के मुताबिक शेख नवीद मुसलसिल दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। मजमूई तौर पर यह उनकी बहैसियत सदर चौथी मियाद है। इनके अलावा बधावत भिक्षापति, नायब सदर मोहम्मद शाहनवाज अली कुरैशी जनरल सेक्रेटरी, MA नवाज जॉइंट सेक्रेटरी, धर्मजीत सेक्रेटरी, सैयद यूसुफ रजवी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और रज़ाक शरीफ खाजिन के ओहदे पर मुंतखब हुए। इनके अलावा सैयद गौस मोहम्मद जावेद और MA खयूम बाबा का अराकीन के तौर पर इंतखाब अमल में आया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार ने 9 मुंतखब अराकीन को मुबारकबाद दी। इंतखाबात के इनेकाद में अराकीन इलेक्शन कमेटी डॉक्टर शबाना कैसर, डॉक्टर मुखीम अहमद और जनाब मोहम्मद उमर ने ताउन किया। वीडियो ले लो, 1 मिनट। सेंटर से लो ना, सेंटर से सही है, सेंटर से। कौंसल जनरल कनाडा के दफ्तरी अहदेदारों ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ उमूर के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद IPS ने इस वफद का खैर मकदम किया और कमिश्नरेट के बारे में तफसीलात से आगाह किया। वफद में कौंसल जनरल कनाडा मुतय्यना बेंगलुरु डैनियल मोरिसी, कौंसल जनरल कनाडा मुतय्यना नई दिल्ली क्लाउड रॉकिन के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा वफद ने शी टीम्स और भरोसा सेंटर्स का भी तफसीली मुआयना किया। कोलिंग इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा डिवीज़न के अवामी मसाइल को हल करने के सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से उनके दफ्तर वाक़े नामपल्ली में मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में वाक़े वक्फ किराएदारों के किराए में इजाफे पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से अपील की कि जो किराए बढ़ाए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि किराएदार ऐसी हालत में नहीं है कि मौजूदा हालात में अपने किराए में इजाफा कर सके। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में गौर करेंगे। नेक्स्ट जो है सो सारा है, जिस आपके सामने लगा दे
कि क्लियर करो किराए का डिस्ट्रीब्यूट बैठी सकते आप लोग बैठिए। KCR सेवा दलम की जानिब से मुनक्किद किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट और कुश्तियों के मुकाबलों के सिलसिले में इनामात तकसीम करने की गरज से इवेंट रखा गया, जिसमें रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए इनामात भी तकसीम किए। MICC ने टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, जबकि कुश्तियों के मुकाबले में राकेश ने कामयाबी हासिल की, जिन्हें इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में RTI कमिश्नर मोहम्मद अमीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सालगिरह की मुनासिबत से इस मौके पर रियासती वज़ीर ने केक भी काटा और वज़ीर आला को मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर स्पोर्ट्समैन की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जबकि KCR सेवा दलम के ज़िम्मेदारों ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। KCR सेवा दलम ने KCR साहब का जन्मदिन मुबारकबाद देता हूँ। हम अपील भी कर रहे हैं तेलंगाना आवाम से कि KCR जब तक रहेगा, तेलंगाना जब तक रहेगा, हिंदुस्तान में कोई रोकने वाला नहीं है। आज हम अपील भी कर रहे, KCR साहब ने बार बार कहते थे हयात को लेके चलो, कायनात को लेके चलो, चले तो चलो, सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ऐसा आदमी हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम KCR साहब को और एक बार जन्मदिन मुबारकबाद दे रहा हूँ KCR सेवा दलम के तरफ से। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। KCR जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। एक बार नहीं, 1000 बार आपके साथ है। हम ये अपील कर रहे जो है स्टेडियम में हज़ारों की तादाद में हम आपके लिए बर्थडे जश्न बना रहे हैं। ये जश्न को सब मेरे भाइयों से आलिजा कोटला में वाक़े मस्कती सुपरमार्केट की ऊपरी मंजिल पर एप्स जिम का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताम मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने अंजाम दिया। मजलिसी रुकन बलदिया पत्थरगिट्टी डिवीज़न महमूद सुहेल कादरी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। मैनेजिंग पार्टनर्स सलमान बिन सुल्तान मस्कती और मोहम्मद तक़ीउद्दीन सुबहान ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। इस मौके पर अली मस्कती, आदिल मस्कती के अलावा ग्रैंड मास्टर MR शाहिद और टेक्निकल डायरेक्टर MI नवीद भी मौजूद थे। मैनेजिंग पार्टनर्स ने इस जिम के बारे में मीडिया को तफसीलात बताईं और नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश को अपनाएं। सबको मुबारकबाद देता हूं जो पुराने शहर में फिर एक बार मार्शल आर्ट के साथ साथ ये क्योंकि जिम लगाए हैं। आज मुमताज़ खान MLA साहब और सुहेल कादरी साहब और मस्कती ब्रदर्स सब मौजूद थे यहाँ पर। अल्लाह के करम से ये जिम तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जिम है अल्लाह के करम से। और एक ख़ास बात ये है कि मैं ख़ास तौर पे पुराने शहर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर अपने जिम, अपनी सेहत का इस्तेमाल करिए। जो लोग आज यहाँ पर पुराने शहर में ग्राउंड्स तो ज़्यादा नहीं है, कम से कम अपनी सेहत के वास्ते ये जिम का इस्तेमाल करिए। अब तो ऑलमोस्ट हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट जिम होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से हम लोग मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। अभी हम लोग का एक वो सेगमेंट लॉन्च किए जिम का, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ अब जिम भी ज्वाइन हो सकते बच्चे। अब तक क्या था, सिर्फ जो है छोटे बच्चे या जो एथलीट्स है वो लोग ज्वाइन कर सकते। अब क्या है, आम का हर जने आके हमारे जिम पे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब छोटे बच्चों से लेके 2 साल की उम्र से हम लोग 3 साल की बच्ची है हमारे पास जो ट्रेनिंग ले रही है मार्शल आर्ट्स में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफ़ लोग भी आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आजकल घर में बैठे बैठे जिसके अपनी हड्डियाँ कमज़ोर कर रहे हैं या जिसको सिर्फ खाली फ़ोनों पे रह रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एज ग्रुप के वास्ते एक वो आसानी हो गई समझिए। जो यहाँ पे एक ही रूफ टॉप में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है हमारे पास। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉस फिट, ग्रुप ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, कार्डियो। और आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी, अवाम से मुलाकात, टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनखीद। कनाडा कौंसल जनरल का हैदराबाद कमिश्नरेट का दौरा, शी टीम्स और भरोसा सेंटर का भी किया मुआयना। बजट इजलास में वज़ीर आला केसीआर की तकरीर पर बीजेपी कायदीन की तनकीदें मुस्तरद, रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिस अराकीन असम्बली और डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। उप्पल पुलिस की कार्रवाई, गांजे की मुंतकली में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, भारी मकदार में गांजा किया गया जब्त। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।